Good afternoon, ladies and gentlemen. Good day and welcome to RBM Infracon Limited H1 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the management commentary concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and 0 on your touch-tone telephone. Please note that this conference is being recorded. Before we begin, I would like to mention that this call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the management as on date of this call. These forward-looking statements do not guarantee future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. I would now like to hand over the call to Mr. Rishabh Rathod from Confide Leap Partners. Thank you, and over to you, Rishabh. Thank you. Good day, ladies and gentlemen. My name is Rishabh Rathod from Confide Leap Partners, and we represent the investor relations for RBM Infracom Limited. I warmly welcome all the participants joining us today for H1 FY26 earnings conference call. We are pleased to have with us the senior management of RBM Infracom Limited, Mr. Jai Bajrang Mani, Chairman and Managing Director, Mr. Aditya Jai Bajrang Mani, Whole-Time Director, Mrs. Pooja Sharma, Company Secretary, Mr. Narendra Sharma, CFO. I now invite Mr. Aditya Mani to share his opening remarks and take us through the company's performance for the first half of FY26. Thank you, and over to you, Aditya. Good afternoon, everyone. Dear distinguished investor, valued partner, friends and well-wisher of RBM Infracom Limited. It is an absolute honor and a deeply humbling privilege to stand before you today at our investor meet as the WTT. Thank you very much. From the depth of my heart, thank you for being the benefit of our being today. I share not just number of plans, but the beating pulse of RBM Infracon, a story of resilience, resonance, and an unyielding love for the future we are forging together. Over 31 years, we have completed 100 projects with 17 underway, serving titans like Reliance Industries, Naira Energy Limited, L&T, Yara Fertilizers, Tata Chemicals, Adani, IOCL, and ONGC, of course. We have weathered economic storms, pivoted through pandemic, and risen stronger each time. So, talking about the performance, our first half performance for the year financial year 26, our total revenue has showed to 28,419 lakhs, a breathtaking of 175% year-on-year leap from 10,379 lakhs. EBITDA has climbed at 165% to 3,807 lakhs, with margin holding steady at 13.41%, a note to our ironclad cost discipline. Profit after tax soaring 172%, that is 2,691 lakhs, yielding a PAT margin of 9.48%, a diluted EPS of 25.31 rupees, up to 145% from last year. This build on financial year 25 trends where revenue more than doubled to 32,175 lakhs and PAT surged on 166% to 2,947 lakhs. Over 3 years, our revenue has grown nearly fourfold and PAT has multiplied over 13 times. First, our EPC bedrock, the soul of RBM, with decade of mastery in mechanical and civil construction, large-scale fabrication, piping, storage tanks, turnaround, blasting, painting, scaffolding, electrical instruments, and material handling. We are more than contractors. We are custodians of progress. Secondly, our bold leap into oil and gas exploration, a chapter that fills my soul with possibility in a sector poised for $100 million investment by 2030. We have seized the ONGC production enhancement contract for the Nanded oil and gas field
handed over seamlessly on January 17, 2025, that is ahead of schedule. Third, our crown jewel, the 957.61 crore EPC partnership with Epitome Industries India Limited, our largest EPC project ever and a symphony of execution. At 95%, our civil work has been complete. The 73% warehouse development is underway, and 110 out of 130 tanks erected. 85% boiler installation work has been done. 70% loading of gantry fabrication. 50% of refinery construction. A fully operational 5,000 KL water tank, internal road, 100% boundary wall, and way bridge is in place. This isn't a progress, it's a poetry in steel and concrete. It showcases our end-to-end pros and the unbreakable trust we have earned through our reputed clients. Our vision is very crystal clear: leverage our order book for revenues, reverse, execute the ONGC contract with flawless grace, diversifying into high growth plans, uphold our debt-free discipline, expand our customers' mosaic, and above all, amplify your value as a shareholder. Today at a market cap of 48,752 lakhs and share at 458.5 rupees, which show a sustainable growth for RBM, on time excellence, zero compromise on safety or quality. This is our covenant. We are happy to announce that the railway tender may be allotted to RBM within the 15 days ongoing. Let's build a better tomorrow together with unwavering gratitude. Thank you. Jai Hind, Jai RBM. Handing over to you, Rishabh, again. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have a question, please press star and 1 on your telephone keypad and wait for your turn to ask the question. If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and 1 again. Ladies and gentlemen, if you have any question, please press star and 1 on your telephone keypad. We will wait for a moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, if you have any question, please press star and 1 on your telephone keypad. The first question comes from Aman Soni, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, hello. आवाज आ रही है. Sir, last time when we spoke in Bharat Connect, you mentioned we will be receiving some bigger orders in next 1 or 2 months, but we have not received yet any such big orders in the exchange filing. So can you comment what is the reason for that? Like why no big order is coming to RBM Infra since a long time? What is your view on that? And secondly, you mentioned about some railway order. Can you tell us what is the size of this order which we are going to receive in next 15 days? Is what you have mentioned. सर अभी बोलूँ अभी जो बड़े ऑर्डर हैं अभी ऑलरेडी जो लूप में ही हैं, अभी क्लियरेंस मिला नहीं है, इसके लिए हम लोग क्लियर नहीं किया है. बड़े ऑर्डर आने हैं और बड़े ऑर्डर में बहुत सारी चैलेंजिंग भी आते हैं और चेंजिंग भी आती हैं, तो उसकी वजह से वो अभी आ नहीं रहे हैं. शायद मोर देन देखिए 15-20 दिन में आने के चांसेस हैं. और रेलवे की हमने 2-3 किया है, एक दिन उसमें क्लियर हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कंफर्मेशन एलवाई नहीं है आने क्या है. अभी गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. रेलवे है, IOCL है, BPCL है और पोर्ट्स है, तो ये सब में अभी ज्यादा फोकस से चल रहा है. आवाज आ रही है सोनी जी? तो इसी के लिए और ओके.
नेक्स्ट। Raman, your voice is not audible, sir. वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो। So you're audible, sir. There is no response from Aman Soni. The next question comes from Madhur Rathi from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. So thank you for the opportunity. Sir, I wanted to understand regarding your short-term loans and advances that we have given as advances to suppliers. So what is this figure of 152 crores? Yes, sir. Hello. Yes, sir. So I wanted to understand regarding the 152 crores loans and advances. So what are these related to? सर प्रोजेक्ट चल रहा है तो एडवांसेस तो रहेंगे, क्लाइंट साइड से भी रहेगा, हम भी एडवांस देते रहेंगे। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से एडवांसेस रखते हैं पार्टियों के, और इक्विटोम के भी ज्यादा एडवांस आते हैं क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फुल पैमाने में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एडवांसेस के लिए बराबर क्लेम होता रहता है कि भाई एडवांस पार्टियों को देना है, सप्लायर को देना है, वेंडर को देना है, क्योंकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट में तो आता ही है। इसके लिए एडवांस सभी है। मार्च तक बहुत सारे इनवॉइसेस क्लियर हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रिफाइनरी का ऑर्डर देना है, बॉयलर का ऑर्डर देना है, तो इस सब में सारे चीजों में एडवांस ही जाता है सर। सर तो अगर हम हमारा ऑर्डर बुक देखिए आज जो 4,500 करोड़ का है सर, उसके अगेंस्ट हमें कितने एडवांसेस देने पड़ेंगे टू प्रोक्योर द इक्विपमेंट? 4,500 का ऑर्डर है, उसमें मेजर पार्ट तो ओएनजीसी का है। उसके लिए हमारा 15 साल टाइम है। ऑलरेडी हम फुल पिकअप में, वर्क ओवर है, फैक्चरिंग है, उसके बाद से ड्रिलिंग का भी प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट में भी एडवांस जा रहे हैं, क्योंकि रिग एक दिन में मूवमेंट होता नहीं है। 4-5 महीना पहले हमको एडवांस में उनको बोलना पड़ता है, एडवांसेस देने पड़ते हैं, तो इसके लिए वो मूवमेंट रहता है। तो ये जो इंफ्रा का ऑर्डर है अभी वो हमारा 1200-1300 करोड़ के हैं, उसमें हमारे मैक्सिमम चल रहे हैं, जैसे 957 करोड़ का इक्विटोम का है, उसमें भी हम 400 करीब 350-400 करोड़ को कंप्लीट कर चुके हैं। बस स्लेब वाइज है, जैसे हम टेंटेज बना दिया, हाइड्रो टेस्ट कर देंगे तो ही उसकी फुल बिलिंग कर सकते हैं। रिफाइनरी बना रहे, रिफाइनरी के सारी इक्विपमेंट आ जाएंगे तो एक साथ शायद मार्च तक बहुत सारे बिल इनवॉइसेस क्लियर हो जाएंगे अपने, जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अभी सब मैन्युफैक्चरर के यहाँ ऑलरेडी मटेरियल रेडी हो रहे हैं, तो जैसे रेडी होके आएंगे तो ऑलरेडी इनवॉइस उसके सब क्लियर हो जाएंगे, एडवांसेस भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। गॉट इट। और सर ये इन्वेंट्री हमारा 70 करोड़ से 151 करोड़ किस कारण बढ़ गया इतना ज्यादा? सर अभी क्या है, हम आईजीसी के भी बहुत सारे मटेरियल अभी परचेज कर रहे हैं। ऑलरेडी न्यू प्रोजेक्ट है तो न्यू प्रोजेक्ट में सारे मटेरियल परचेज कर रहे थे, इसलिए इन्वेंट्री बढ़ रही है। अभी जैसे जैसे इंस्टॉलेशन होते जाएंगे वो धीरे धीरे इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी। गॉट इट। सर जस्ट फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, सर अभी हमारा ऑर्डर पाइपलाइन कितना है और सर एक जनरल सक्सेस रेट कितना रहता है हमारे बिजनेस में? सर ऑर्डर पाइपलाइन में भी हमारे पास मानो जस्ट अभी बिडिंग जो हमने किया करीब 1500-1700 करोड़ के ऑलरेडी बिडिंग प्रोसेस में है। अभी उसमें कितना क्लियरफाई होता है वो हम भी क्लियर नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर है। अब मेलवन अगर सब में आ जा मैक्सिमम में आए तो बेटर है, पाइपलाइन में इतने ऑर्डर है। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे सर? सर और सक्सेस रेट कितना रहता है कि हम इसमें से 20-30% ऑर्डर्स? यस ज्यादा ही रहता है, 40-45% पर सक्सेस रेट रहता है कि हम जो कोड कर रहे हैं ऑलरेडी उसमें 40-45% तो सक्सेस रेट है ही है। अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, पाइपलाइन में है, वो क्लियर हो जाएंगी। और सर ये मेजॉरिटी ईपीसी ऑर्डर रहेगा, वो अंडरस्टैंडिंग? ये अभी जितने ऑर्डर रहे हैं वो ईपीसी ही आ रहे हैं। अभी मैक्सिमम ऑर्डर ईपीसी आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने ईपीसी में रखा, हमें इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है ईपीसी में, क्योंकि उस टाइप का जॉब लेने में से कोई फायदा नहीं है, लेबर जॉब लेने से कोई फायदा भी नहीं है अपने को। ईपीसी लेने में फायदा ये है कि अपने को इंजीनियरिंग भी करना, प्रोक्यूरमेंट भी करना, कंस्ट्रक्शन भी करना, तो उसमें हमें थोड़ा रेशियो प्रॉपर आ जाता है प्रॉफिट का। गॉट इट। सर तो हमारा स्टेडी स्टेट मार्जिन क्या रहेगा सर ये ओएनजीसी ऑर्डर में भी और हमारे नॉर्मल ईपीसी बिजनेस में? क्या ये 15% इज फेयर अंडरस्टैंडिंग या सस्टेनेबल मार्जिन क्या रहेगा हमारे? उसमें अभी क्या ओएनजीसी में कैपेक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए आपको डिक्लेयर नहीं करेंगे हम, लेकिन ऑल ओवर मार्जिन हमारा 9-10% तो अभी आ रहा है।
बढ़ भी सकता है थोड़ा। एक बार हमारा सारे जॉब अभी नए बहुत सारे जॉब इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। अभी मार्केट भी थोड़ा बेटर हो रहा है, इंफ्रा का भी बेटर हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में बहुत चैलेंजिंग हो गया लेबर्स का। तो दिक्कत हो रहा है कि क्लाइंट अब समझ में आया है कि भाई अगर हम खाली लेबर ढूंढ के काम कराएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हाईली हर दिन गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है कि अभी लेबर के प्रति। तो उसके लिए अब वो सब कॉन्ट्रैक्टर लोड करके ही अब कोड कर रहे हैं कि भाई इतना लेबर पार्ट आ रहा है, इतना मटेरियल पार्ट आ रहा है, इतना इस चीज का पार्ट आ रहा है। तो हर चीज की जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से तो ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन सब लोग अभी समझ के ही कोड कर रहा है। गॉट इट। और सर ये 9 से 10% पैट मार्जिन की बात हो रही है, राइट? यस यस सर, यस। ओके। और सर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ओएनजीसी बिजनेस है वो इससे ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस होगा जब वो स्केल हो जाएगा? सर हाँ, जब वो हो जाएगा तो इसका अगर जो ओएनजीसी ऑलरेडी हम अभी तक हमने जो अभी न्यू वेल अभी चालू नहीं किए हैं, ऑलरेडी हमारा दिसंबर में नवंबर में प्लान था चालू करने का ड्रिलिंग का, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली रिग आने में देरी हो रही है। तो हमारे ख्याल से अभी 10 डेज लगेगा, क्योंकि एक रिग मोबिलाइज करने में 80 से 90 टेलर मटेरियल आता है। जैसे हम स्लम बर्जर को काम दिए हैं, तो आप देखे होंगे अभी पिछले हफ्ते हमने डाला था, एनएससी को डाला था, तो उनका मोबिलाइजेशन में ही 10 दिन 12 दिन लगता है। जस्ट हमने एक फैक्ट्री कंप्लीट किया, दूसरे फैक्ट्री में आ गए। तो जब एक बार सेचुरेटेड 1.5 साल में हो जाएगा तो इसके ऑलरेडी ये सबको मालूम है कि ऑयल क्रूड में प्रॉफिट तो है, तो जब आ जाएगा, लेकिन इंफ्रा और क्रूड दोनों मिक्सअप करते तो उतना ही पे आ जाता है पैट मार्जिन। तो अगर सेपरेट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक साथ मिक्सअप है तो थोड़ा मार्जिन उसी को मिला के चलेंगे। लेकिन जब एक बार हमारे सारे वेल चालू हो जाएंगे, प्रोडक्शन हमारा चालू हो जाएगा, हमारा टारगेट है मार्च तक हम कम से कम पर डे का हम करीब 800 से 900 बैरल पर डे प्रोड्यूस करें। और सर ये जो हमारा 3-3.5 करोड़ का ऑर्डर, कैन यू जॉइन बैक द क्यू सर? Yes, I will do that. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I request the participants to restrict with 2 questions in the initial round and join back the queue for more questions. The next question comes from Ashit from Columbus Capital. Please go ahead. Hi sir, ये जो 900 crores का आप एक ऑर्डर बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स दे सकते हैं क्या? बताइए सर, क्या चाहिए आपको डिटेल? आइए साइट पर विजिट करिए, जो भी डिटेल चाहिए हम दे देते हैं। हाँ, वेलकम है। आप हमारे साइट पर, आप इन्वेस्टर हैं, हमारे साइटों पे आइए एक बार देखिए। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? न्यू टू द कंपनी, आपकी कॉल पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस एक बार सुना तो थोड़ा आप ओवरव्यू दे देते। एकदम सर, आपको कोई डाउट हो तो पूछिए, आइए, वेलकम है। साइटों पे आगे देखिए, क्या उसमें पूछना चाहते हैं बताइए सर। नहीं सर, मतलब नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, क्या काम कर रहा है आरबीएम और क्या स्कोप है? जैसे अभी तक आपने बताया कि 300-350 करोड़ का आप काम कर चुके हैं, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्क? हमारा एडिबल ऑयल की रिफाइनरी है, पूरी ईपीसी है सर, इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्शन की है। पहले हम फर्स्ट फेज में इसका मिट्टी फिलिंग पूरा कर लिए, एक्सकेवेशन वर्क पूरा कर लिए, उसका बाउंड्री वॉल कर लिए, अभी रिफाइनरीज के भी काम चालू कर, टैंकर्स हम बना चुके हैं, ऑलरेडी कनेक्शन बाकी हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आने बाकी हैं, इसके लिए हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। हाइड्रो टेस्टिंग भी अगले महीने से हम लोग चालू करने वाले हैं। तो मेजर पार्ट होता है एडिबल में टैंकर्स का होता है और रिफाइनरी पार्ट होता है। तो हम टैंकर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और रिफाइनरीज पार्ट के लिए जो मटेरियल हमको बाहर से बना के अदर वेंडर से लाना है तो अभी बन रहे हैं, उसको एडवांस भी जा रहे हैं, हर चीज जा रहे हैं। तो जिससे कंप्लीट हो जाएगा तो भाई मोर देन आपका मार्च में हमें फर्स्ट फेज का इंस्टॉलेशन फास्ट चालू हो जाएगा, फास्ट वे में। ओके जी जी। एंड सर बस एक सेकंड क्वेश्चन ये कि तो ईयर एंड मतलब हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट वुड बी द क्लोजिंग फिगर? सर देखिए, हमारा क्या है, हमारा ईयर एंड का तो है, देखिए अभी हमने H1 जो दिया है आप सोच नहीं सकते हैं, H2 भी हमारा मार्केबल था। तो आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए हम लोग लिस्टेड कंपनी, अगर हम सबको बताते जाएंगे तो आदमी वो क्वेश्चन के, लेकिन आप ये बेटर रहिए कि हमारे आप इन्वेस्टर हैं और हमें क्लियर बता रहे हैं कि पहले हम इन्वेस्टर का ध्यान रखते हैं फिर अपना ध्यान रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। हाँ, मेरा ये पहले से थिंकिंग है, ऑलरेडी कंपनी ने इस साल भी मान के चलिए कि जो भी काम किया है ऑलरेडी मैं हैप्पी हूँ और आप भी हैप्पी रहेंगे। हाँ जी सर, हम तो हैप्पी हैं, थैंक यू। जी जी, एकदम हैप्पी रहेंगे। कूल सर, देन बेस्ट विशेस एंड बस आप लोग का सहयोग रहेगा सर, हम लोग काम करेंगे। हम लोग 24/7 काम करने वाले लोग हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब तो लड़का भी आ गया है मेरा साथ में, बहुत सपोर्ट कर रहा है,
ऑलरेडी मैं ओएनजीसी में ही पूरा फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि ओएनजीसी फर्स्ट टाइम मोबिलाइज कर रहे थे तो हम लोग बहुत सारे चैलेंजिंग आए। अभी बहुत सारे चैलेंजिंग हम लोग क्लियर कर चुके हैं और हमें 85% काम को समझ में आ रहा है कौन सा चीज कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, कैसे करना है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि 1-2 बार आप लोग आइए और हमारे साइट विजिट करिए सर, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा कितना टफ काम कर रहे हैं लोग। डेफिनेटली सर, मैं बोलता हूँ अपने बॉस को भी कोई ट्रिप, आइए बट वेलकम सर, वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. The next question comes from Gunit Singh from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. Yes, sir. Thank you for this opportunity. So, हमारी year end order book कितने होनी चाहिए आपके हिसाब से? मतलब what kind of orders should be in H2? सर हमारा अब क्या बताएंगे, अभी कि अभी डिक्लेयर करना नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको H2 भी बहुत बढ़िया मिलेगा, जैसे H1 मिला H2 भी बढ़िया मिलेगा, बेटर मिलेगा सर। अच्छा, तो जैसे हमारी ऑर्डर बुक अभी अराउंड 45 CR है, तो हमारे कोई टारगेट है क्लोजिंग ऑर्डर बुक फॉर FY26? यस सर, बेटर मिलेगा। अच्छा, तो सर जनरली EPC में सेकेंड हाफ बेटर होता है, तो आपकी जजमेंट में हमारी कंपनी भी शुड परफॉर्म बेटर देन H1 एंड H2? यस सर। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? जी। अच्छा, तो सर जो हमारे ONGC का ऑर्डर है फॉर 15 years, तो FY27 से हम कितना टॉप लाइन बॉटम लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ONGC? 27 से आप देखिए साहब, H1 में तो हाँ, H2 में भी ONGC ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन हमारे ख्याल से हमारा भी टारगेट है कि हम एवरी मंथ जो हमारा ONGC का इंक्रीजिंग हो जाए, एवरी मंथ 10 CR का हम चाह रहे हैं कि इनवाइस होना चाहिए। तो मैंने 120 करोड़ इसमें एवरी ईयर इस साल 2026-27 में हम इंक्रीज करेंगे। उसके बाद से हम बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हम जितने वेल रिपेयर करते जाएंगे और ड्रिलिंग करते जाएंगे, हमें तो ड्रिल एक्चुअली बेसिकली ONGC ने 12 का ही दिया है कि 12 का आपको ड्रिल करना, लेकिन हमारा टारगेट है कि अगर जो सब सही रहा और बेटर रहा तो हम 50 वेल ड्रिल भी करने वाले हैं। हमारा लिखित में गवर्नमेंट के साथ 12 ड्रिल का ही है और 45 वर्क ओवर का है। अभी तक हम लोग 30 वर्क ओवर कर चुके हैं और ड्रिलिंग का हमारा प्लान है फर्स्ट फेज में, यानी मार्च तक हम शायद 2 ही कर पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। रिग मोबिलाइजेशन में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था रिग वाले को, उनका शायद किसी और जगह पर डिले हो गया, तो इसके लिए हम भी डिले होंगे, 10-15 दिन डिले हो गए, नहीं तो हम 2-3 कर दिए होते और हम 2026-27 में अच्छा करेंगे ONGC। सर तो FY ये सेकेंड हाफ मान लो लास्ट क्वार्टर Q4 तक हम 10 करोड़ तक रन रेट पहुंच जाएंगे ONGC में एकदम। ये H2 में हम नहीं, H2 में नहीं पहुंचेंगे। H2 में टोटल हो सकता है रेवेन्यू 10 से 11 करोड़ हो जाएगा, और नहीं टोटल रेवेन्यू मानो जो 25-26 का, 26-27 में जो हम रेवेन्यू करेंगे वो हम बढ़ जाएंगे, वो तो हम क्लियर करेंगे। देखिए ये तो जमीन के अंदर की चीजें, हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे लिए बरसात भी, रेनी सीजन भी खतरनाक है और ठंडी सीजन भी खतरनाक है, क्योंकि ठंडे में क्या होता है कि उसको उतना प्रेशर बहुत वेल में बहुत प्रेशर रहता है, इसकी वजह से बहुत क्रूड स्टक हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बेबी जैसे उसको ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी हम लोग अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया अभी, क्योंकि ठंड स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग रहता है प्रोग्रेस में, कि क्रूड निकलने में दिक्कत आती है। ओके सर, तो इसमें मार्जिन क्या रहेगा अगर 10 करोड़ उस पर रन रेट पे? सर देखिए ONGC में कभी भी आप काम करेंगे, क्रूड का काम करें, क्रूड में 30-35% मार्जिन तो आता है, लेकिन हम तो RBM की बात करेंगे ना, केवल ONGC की क्यों बात करें। जब हमारा बढ़ते जाएगा तो आता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वैसे भी आप कोई क्रूड वाला काम करता हो तो उनसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है सर। अगर आपका प्रॉपर वे में क्रूड निकलता है तो कोई नुकसान नहीं। तो सर कितना बेटा मार्जिन होगा, मतलब 10 शेयर की रन रेट? हम बढ़ भी, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं वो तो बढ़ भी सकता, हम तो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेल को हम डेवलपमेंट करें कि हमारा बढ़े। हमारा इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो हमारे लिए दिक्कत भी होगा ना सर, हम तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। गॉट इट सर। तो हमारी जो H1 परफॉर्मेंस है, हम इसको फ्यूचर के लिए बेसलाइन समझ सकते हैं कि इतनी मिनिमम तो एकदम समझ सकते हैं सर, आप एकदम समझ सकते हैं, नहीं जाना चाहिए। यस सर, एकदम समझ सकते हैं।
तो सर कोई हमारी इंटरनल टारगेट है, मतलब मैं नंबर नहीं चाहता स्पेसिफिक, बट डायरेक्शनली कि 30% ग्रोथ या 20% ग्रोथ, किस टाइप की ग्रोथ देख रहे हैं हम रियलिस्टिकली? देखिए, ग्रोथ तो हमको डे बाय डे और डे नाइट करना है साहब। आप तो शेयर लेके बैठे हुए, लेकिन हमें आपके बारे में ध्यान देना है कि हम अगर हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, हम तो ये इसके लिए लगे हुए हैं कि अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे तो आज के टफ मार्केट में हम मतलब रहेंगे नहीं। ऑलरेडी मेरे को प्रोजेक्ट भी करना है, लोगों से कंपटीशन भी करना है और करना है, तो हम तो हर दिन नया करते हैं। इसीलिए ONGC का भी प्रोजेक्ट लिया कि इसमें कंपटीशन नहीं, कि हम कंपटीशन से थोड़ा अलग हो गए हैं इसमें, तो ये बेटर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी जाता है, तो आदमी सोच के कोई भी लेता है। अभी बहुत सारे बिडिंग भी चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। सर कोई ऐसे इंटरनल टारगेट है हमारे की 1000 करोड़ बाय एकदम बिना टारगेट ये कंपनी काम करेगी तो बिना वो फायदा नहीं है सब। विदाउट टारगेट तो हम लोग नहीं चलते हैं, टारगेट भी बनाते हैं, बजट भी बनाते हैं। क्या सर इंटरनल टारगेट क्या है आपका अगले 2-3 साल में? देखिए, हमारा 2027 तक का हमने टारगेट 2000 करोड़ का बना के चला हुआ है, लेकिन नहीं होगा तो 1000 पार तो कर रहे हैं हम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you. I request the participants to restrict with 2 questions in the initial round and join back the queue for more questions. The next question comes from Gaurav Nanda from Gaurav Nanda and Associates. Please go ahead. हेलो। हाँ गौरव जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो अच्छे रिजल्ट के लिए। दूसरा मैं इसमें आपके शेयर्स में डे 1 से बना हुआ, मुझे अलॉटमेंट मिली थी, मैंने तब से लेके आज तक होल्ड कर रखा है। बहुत बढ़िया है सर, कम से कम आपने भरोसा रखा है तो रखिए। हाँ जी। और तीसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि 3 साल पूरे होने वाले हैं जनवरी में, तो हम माइग्रेशन की प्रोसेस शुरू करने वाले हैं क्या? क्योंकि मैं अगर माइग्रेट हो जाएगा तो ज्यादा इन्वेस्टर जुड़ पाएगा, क्योंकि लोड साइज नहीं होगा। हम जनवरी में हमारा टाइम MSME से पूरा हो रहा है। मैं मेन बोर्ड में हमने तैयारी कर रखी है, मेन बोर्ड में हम जाएंगे। हाँ जी, यस सर। एक महीने शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लगता है, 1 महीना उसमें टाइम जाएगा। नहीं वो हमने सारी तैयारी, हमारा सारे काम चल रहे हैं सर, हमने रुके नहीं, हम सारे काम तैयारी चालू रहे हमारी। हाँ जी जी, ठीक, बस यही पूछना था मुझे। नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. The next question comes from Ram Marela, an individual investor. Please go ahead. Hi, thank you for this opportunity. So I would like to understand what was the top line and bottom line contribution from Epitome project that we have, and what was what is the when are we planning to fully book that revenue from that? And the second question was, I believe in one of the updates that you mentioned that you're planning to enter into Andhra Pradesh Kakinada ports with one of the reputed companies in Netherlands. Are there any updates in that perspective? Yeah, these are 2 questions that I have, sir. आदित्य, आप बताओ यार, मेरे को पूरा समझ में नहीं है। Please, can you repeat your question, sir? Yeah, sure. So I would like to understand, what is the revenue booked from the Epitome order, the 957 crores that you have? Mm-hmm. And then what is the plan? How soon we are going to consume that are completing that particular order? That's number 2. And number 3 is I've read that some of the updates from your website or in your earlier conversation where you mentioned that you're planning to enter into the Andhra Pradesh with one of the leading companies with a similar order like ONGC. So I would like to see any updates in that perspective. बस मैं समझ गया, मैं बता दे रहा हूँ। अभी तक हमने 200 करोड़ का करीब इम्पोर्ट का, बता दो भाई, 200 करोड़ कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। बाकी आप बताओ। Sir, basically, as per industry market, we have a 15 to 20% base margin from our EPC project. So you can count on that. The 20% will be our overall profit margin that we will be generating from our Epitome oil industry. That is that is answer to your first question. Second thing is we are doing an edible oil business, which is very similar to the around the business who are doing the edible business like Gokul
Epitome, BN Aggregate is already doing that. So we are completing that. And third thing is related to ONGC. For the ONGC, we are already having some orders related to the sick wells and which are up to the Mahsana and every other part of the India. So we are doing our ONGC sick wells research and filling that tender to have our particular similar orders like ONGC. Hope I have answered your question, sir. काकीनाडा वाला बिड किया था. Correct. Sorry, sir. Any update on Kakinada bid that you have done? I think that was for Reliance. नहीं, Kakinada. Sridhar, ये सब बता देंगे. Hello. Yeah. Hello. Yes. Yes, sir. So Kakinada we have bid. It is under some technical thing which is undergoing. We will sooner we will let you know about that. Like Mahsana is also under there, so it will be around out. काकीनाडा में एक टेक्निकल पॉइंट आया हुआ है, उनका क्वारी आया हुआ है. जो हम लोग पाइप्स का वो जो हम लोग डायरेक्ट परचेज नहीं किया ना स्टार्टिंग में, हम लोग कौन सा P91 या कुछ ऐसा था, उसके वजह से वो होल्ड पे भी है. वो क्वारी हम लोग क्लियर कर रहे हैं. Yeah, in this center actually we have replied to their queries. Actually we are waiting for their confirmation. I see. Okay. Technical thing is underway for Kakinada, and they are counting for us the overall sequels completion thing. So we are into that. So sooner or later you will hear about that also, sir. Okay. I think the last question that you haven't answered, like how soon we are, like how soon we are going to complete the Epitome order. It's like 200 crore revenue is booked is what I heard, and the rest of the revenue, when are we planning to book it? 200 का तो हो गया इनका, वो तो ऑर्डर भी हमारा कंप्लीशन डेट पूछ रहे हैं एपिटॉम का सर. वो कंप्लीशन डेट 2027 मार्च तक जाए. 27 मार्च में कंप्लीट हो जाएगा. डिले हो रहा है. Okay, 27 March. Okay. Yes. Okay. First and second. And we would also like to know you guys that we have recently completed a 92-meter tank order in Naira with a limited time frame. So, which is much appreciated by our client. So, we are doing today our final hydro testing work. It is being appreciated. Okay. Yes. Thank you so much. Appreciate your answers. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. The next question comes from Nikul Anand, an individual investor. Please go ahead. Hello. Anand ji, बताइए. नमस्कार. Yeah. Good afternoon, sir. So my questions are also related to future projects and order book visibility. So I just wanted to ask, like, are there any large EPC or oil and gas tenders currently in the pipeline? And also, if there are, like, could they materially add to the order book in the next few quarters? सर इस S2 में शायद हमारे पास 500-700 करोड़ का ऑर्डर आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं. कॉन्फिडेंट है हम लोग कि आ जाएंगे. कुछ टेक्निकल क्वारियां चल रही हैं जिसमें हम क्वालिफाई हो गए हैं ऑलरेडी. जानते हैं गवर्नमेंट का और आजकल प्राइवेट में बहुत सारे वेरिफिकेशन हो रहे हैं कि भाई ये कैसे करोगे, क्या जुगाड़ लगाओ, कैसे लगाओ, तो वो सब चल रहे हैं. तो S2 में अच्छा खासा ऑर्डर आने वाले हैं हमारे पास. शटडाउन के भी बहुत सारे शटडाउन के भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं. रसिया यूक्रेन का जो लफड़ा हुआ उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ है. Okay, got it. रसिया यूक्रेन की वजह से मटेरियल नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए अभी रिफाइनरी बहुत सारे शटडाउन डिले कर रही हैं. नहीं तो अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं. Okay, and इसी का कंटिन्यूएशन सर कि लाइक कंपनी कैसा पोजीशन है ये, लाइक लेट्स से एक बड़ा ऑर्डर आएगा तो ये कैपेसिटी हैंडल करने के लिए. अभी मैंने मिस्टर श्रीधर अय्यर एक है हमारे CEO को लिया हूँ. आज पर ट्रायल पीरियड में 3-4 महीने उनको हो गए. अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट वो खुद के बीड कर रहे हैं. ऑलरेडी उनका एक्स मेगा है, मेगा इंजीनियरिंग से आए हुए हैं और ऑलरेडी वो प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छा हैंडल भी कर रहे हैं. पूरे प्लान कंपनी की पूरे सिस्टम हम लोग चेंज कर रहे हैं, ERP डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए पूरा थर्ड पार्टी PPI लगा रहे हैं. आदित्य KPMG से भी बात कर रहा है कि भाई हमें कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है. अभी 1-2 पार्टियों को फाइनल कर रहे हैं. तो हम ऑलरेडी आने वाले समय के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और स्टाफ भी ले रहे हैं. बहुत सारे रिक्वायरमेंट भी चला है, पेपर में देके हम लोग ले रहे हैं. तो तैयारी फुल पिकअप में है, कोई दिक्कत नहीं है सर. Right. Okay, I think that answers my questions very well.
Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. The next question comes from Atul Kumar, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity, and good afternoon, sir. And thanks a lot for the opportunity, and also congratulations on the good set of numbers. Sir, I have just two questions. So one is on the order book. Like, for example, most of our orders are from ONGC. So if we exclude that, what is our current order book excluding ONGC order? Yes, sir. नहीं सर, जो ONGC का ऑर्डर पहले चल रहा है वो तो चल ही रहा है. बहुत सारे ऑर्डर भी हम लोग ONGC के बीड भी करने के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, आज निकलता है और उसमें जितने बीडर आते हैं टाइम एक्सटेंड करते जा रहे हैं. तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमें आइडिया है अभी बीड करने के लिए, क्वालिफाई भी हम लोग हैं. तो चल रहा है, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा. और सर अगर ONGC का सर अगर ऑर्डर हटा के दूसरी कंपनी का ऑर्डर EPC में बोले तो वो अभी कितना टोटल होगा? करीब 1,500 करोड़ का है. Okay, that's great. Sir, one question I have on the future direction. So I think आपने earlier calls में you gave around some guidance around FY26 for 600 to 700 top line. I just wanted to ensure that are we looking green for achieving that target, or like where are we tentatively seeing to end the FY26? Yes, sir. नहीं, हम लोग हमारा टारगेट एक्चुअल है. देखिए सर, बोलने में और पेपर में और अपने काम में लाके प्रेजेंटेशन काम करके देने के लिए वो बेटर है. हम बोलेंगे और हम आपको करके दिखाएंगे, वो बेटर रहेगा. आप हमारे साथ बने रहिए. हम हर समय आपके लिए कॉल पे अवेलेबल हैं, बट आप मैं करके दिखाने वाला आदमी हूँ, बोल के ज्यादा फायदा नहीं है. ओके, नहीं सर, वो देखा भी है थोड़ा. आई एम इन्वेस्टेड इन लास्ट 1 year एंड गाइडेंस जो पहले कॉन्फ्रेंस कॉल्स में दिए गए हैं वो सारे मीट हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट. बट जस्ट एक डायरेक्शनली अगर थोड़ा गाइडेंस मिलता, फॉर एग्जांपल FY27 आपने बोला कि 1000 से ऊपर ही जाना चाहिए, तो एक रफ एस्टिमेट लेट्स से इवन फॉर FY27 दैट 1000 मिनिमम होगा और वी कैन ट्राई टू डू मोर. सो वो भी सर हेल्पफुल होगा अगर आप थोड़ा उससे गाइडेंस. नहीं, गाइडेंस हमारा ऐसा है कि सर जो कि अभी हम जो अभी H1 का रिजल्ट है, H2 का भी रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा. हम जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट आए भी हैं हाथ में, तो टारगेट तो हमारा फिक्स है कि भाई 27 में हम ज्यादा करें, कम क्यों करें, बट देखते हैं किस तरह से होता है. कोई चैलेंजिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अच्छा ही करने वाले हैं सर. ओके सर. एंड सो आई एम अज्यूमिंग इफ अगर हमारा 1000 करोड़ के टॉप लाइन का टारगेट है FY27 का रफली, तो करेंटली हमारे पास डेट है अराउंड 36 करोड़. सो we will require more working capital to fund or to operate at that scale. So is there any plan, sir, we have for raising funds either in equity or let's say in debt? सर अभी क्या है, खर्च अभी जिस तरह से कंपनी को हम लोग मेहनत करके बना रहा है, तो हर समय इक्विटी बेच के पैसा लेके काम करना भी ठीक नहीं है. हम बैंकों से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो हम बैंक भी हमें सपोर्ट करता है तो हम काम करेंगे. अब हम फर्दर सोचेंगे, जब हम मेन बोर्ड में आएंगे तो इक्विटी के बारे में सोचेंगे सर. ओके, सो अभी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा लोन या इक्विटी की रिक्वायरमेंट अभी लेटेस्ट लाइक रिसेंटली आपको नहीं है? नहीं, जैसे देखो पैसे की जरूरत है हर समय हमको. अगर जो बढ़ाना है, अपनी कंपनी को बढ़ाना है, तो पैसे की जरूरत है. लेकिन मैं बैंक से सपोर्ट लेना चाहता हूँ साहब. अगर डेप्थ से हमको पैसा मिल जाता है तो हम डेप्थ से लेके भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बाद में हम जब मेन बोर्ड में आएंगे तो मेन बोर्ड के उस समय सोचेंगे कि हमारा कैसे एक्सपेंशन करना है और किस तरह से लेना है. Okay. And sir, and also that's a good news that you're planning to get on board in January, February timeline. But sir, abhi any risk that we see in that timeline, or we are pretty confident that it will move to main board in January? जनवरी फरवरी में हमारा टाइम पूरा हो रहा है नेक्स्ट गाइडलाइन. तो जनवरी फरवरी के बाद हम तैयारी कर रहे हैं सर. मदद बनाती डॉक्यूमेंटेशन हम ऑलरेडी उनके गाइडलाइन के हिसाब से सारा हमारा फुलफिल हो गया है, और हम जनवरी फरवरी में मेन बोर्ड में फाइल अपना दे देंगे उनको करने के लिए. ओके, यस.
Okay, that's all from my side, sir. Thank you. Thanks for answering. Thank you. Thank you. The next question comes from Kush Bandia, an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Namaskar. Sahi, sir. नमस्ते सर. एक्चुअली ना आई वांटेड टू नो कि अपना जो ग्रीन हाइड्रोजन पे भी मतलब वर्किंग ऑन, तो उस प्रोजेक्ट पे इज एनी अपडेट? सर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रोजेक्ट के लिए लैंड तो हमने ले लिया था. अभी हम डिले किए क्योंकि हमारा ओएनजीसी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उसमें हम रेवेन्यू जनरेट कर लें तो हम ग्रीन हाइड्रोजन, और आज के डेट में बहुत जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन बहुत हल्ला हुआ, लेकिन हमको पर्टिकुलर एक सजेशन नहीं मिला. ऑलरेडी सारी पार्टियों से हमारी बातचीत होके फाइनल करके रखा हूँ. हम थोड़ा इधर से फ्री होते हैं तो फिर हम उधर फोकस देंगे. हमें पर्टिकुलर उस चीजों में जानी है कि हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन का मानो हम तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, बेचेंगे कहाँ, और बेचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने बना दिया. तो हमने एक बचाऊ के पास लैंड लेके रखा हुआ है, ऑलरेडी बाउंड्री भी कर दिया है. तो हम कुछ दिन में प्लानिंग करेंगे, जैसे थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि और पूरा और समझ में आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो लोग इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कई जगह पे आप देखे होंगे कि बहुत लोग प्रोडक्शन करके कितने % लोग बेच रहे हैं. हमने देखा, मार्केट का सर्वे करके देख रहा हूँ कि बनाने के लिए अभी बहुत लोग काम लूप में लगे हुए हैं, लेकिन बेचने वाले लोग और बना के लोगों को मार्केट में देने के लिए अभी बहुत कम लोग हैं. तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि 2-4 लोगों का प्लान सक्सेसफुली कमीशन हो जाए, उसके बाद हम चालू करेंगे. ये तो 3-4 महीने 6 महीने का हमारा काम है सर. ओके, ठीक है. जी सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you. We have a follow-up question from Madhur Rathi from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. सर, जो हमारा 3,500 करोड़ का जो ओएनजीसी ऑर्डर है सर, इसमें हमें कितना कैपेक्स करना पड़ेगा इस ऑर्डर के लिए? देखिए सर, अगर जो हम 50 वेल अगर ड्रिल करते हैं तो 1000 करोड़ हमको डालना है, लेकिन 50 वेल को हमको ड्रिल अभी नहीं करना है. हमें अभी जो मोर देन हमने अभी जो टारगेट बनाया है कि हम 12 वेल ड्रिल करेंगे, तो यानी 240 करोड़ या और 100 करोड़, मैंने 350 करोड़ में हम कैपेक्स में अपना काम कर लेंगे. ये है 12 वेल के लिए, राइट? 12 वेल के लिए, जी सर. सर, तो जो हम आगे वेल्स का मतलब करीबन 30 करोड़ एक वेल के लिए आज लग रहा है हमें. सर, जो आगे जो 50 वेल का टारगेट है सर, ऐसा होगा कि हम मतलब जो इंक्रीमेंटल वेल्स बिल्डअप करेंगे उसमें कम पैसा लगेगा, ये सही अंडरस्टैंडिंग है? सर, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ 12 वेल जो हम करेंगे, 12 वेल में से हम रेवेन्यू जो कमाएंगे, हम हर साल 5 वेल उस रेवेन्यू से करेंगे और 5 वेल इससे, मानो हर साल का हमारा प्लानिंग रहेगा. 3-4 साल में हमने पूरा वेल कर लेने का है. हमें जगह मिली हुई है, कुछ जगह हमें नया लेना है, हायरिंग का लेना है, तो पहले जो हमें जगह मिली है पहले उसको फुलफिल कर लें, फिर आगे करें. क्योंकि धंधे का ऐसा है कि एक ही साथ में पड़ जाऊं और फिर कल में प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए सारे चीज देखना. एक डिपार्टमेंट नहीं है, 50 डिपार्टमेंट है, सबसे क्लियरेंस लेना, ये सब लेना. तो अभी हम एक साथ नहीं कूदना चाहते हैं. हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे, अभी जैसे अभी हम 2 वेल का प्लानिंग किए हैं, तो इसमें कितनी चैलेंजिंग हमको आती है गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, लोकल से, वो सब चीज को देखते हुए फिर मैं आगे की प्लानिंग हर साल की बनाएंगे. हमारा टारगेट है हर साल 5 से 7 वेल ड्रिल करने का, न्यू वेल ड्रिल करने का. तो उस हिसाब से पहले हम 2 वेल करेंगे, तो उसमें जितने गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी कंप्लायंस है, एनजीटी के हैं, सारे नॉर्म फुलफिल हो जाएंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें ये खर्चे में पूरे वेल पड़ रहे हैं. हमने आपको लमसम 20 करोड़ बता रहा हूँ, 20 करोड़ का हमारा प्रपोजल भी है, ये हो सकता है 16 करोड़ में भी हो जाए या 22 करोड़ में भी हो. तो उस हिसाब से हम अभी पहले 2 वेल ड्रिल करेंगे तो सारे चैलेंजिंग हमारे सामने आ जाएंगी, भाई यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है. हमने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन जिस दिन हम पहले पंच मारेंगे उसी दिन मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन एजेंसियां आ रही है, बोलेगी ये परमिशन है. लेकिन जिस हिसाब से हमें चेकलिस्ट बनाए उस हिसाब से हमें फुलफिल करके बैठा हूँ. गॉट इट. और सर, इसके लिए हमें कुछ डेट लगेगा इन 350 करोड़ के कैपेक्स के लिए? यस सर, जरूर लगेगा, लेकिन उसके लिए हम अभी क्या है, अभी हम इक्विटी से कोई पैसा लेना नहीं चाहते हैं. रीजन क्या है कि पहले अगर जो हम बैंक से बात कर रहे हैं, अगर बैंक मेरे को सपोर्ट कर देगा, सॉरी, बैंक अगर जो हमको सपोर्ट कर देगा तो पहले हम प्रोग्रेस अपना क्या करते हैं, प्रोडक्शन निकाल के फिर हम डेट में जाएंगे. अभी नहीं जाना चाहते हैं ये फिलहाल.
गॉट इट। और सर ये 3 से 4 साल में हमें करना है अभी, ये जो 350 करोड़ है, ये सही है राइट? नहीं, ये 350 है, हम ये 2 से 2.5 साल में, 1.5 साल में ही हम कर देंगे, क्योंकि हमें तो डे 1 में हम जिस दिन से फील्ड हैंडओवर लिए हैं, आप कहीं भी पता करवा सकते हैं, एक दिन भी रुके नहीं है। कोई फील्ड लेता है तो साल भर अगर जो कोई 50 लाख रुपए महीना कमाता है तो क्या जरूरत है मानिए सोचने वाली को, हमें वो सोच नहीं है, हमें तो ये मानो रेवेन्यू जनरेट डे बाई डे करना है। ओके। और सर अभी तक हमने इसमें से कितना पैसा लगाया है इस ओएनजीसी ऑर्डर के लिए? 350 में से हमने कितना अभी तक कर चुके हैं हम लोग? अभी तक हमने करीब 70 करोड़ से लगा चुके हैं सर। और ये जो इन्वेंट्री है 150 करोड़ का एडवांस विदाउट बीजी। ओके। और सर ये जो 150 करोड़ का इन्वेंट्री है और जो कुछ 150 करोड़ का एडवांसेस जो सप्लायर है, ये हमने पैसा देख चुका है, बस ये इसका ऑर्डर है, मतलब क्या होता है, आप कोई हम घर तो बना नहीं रहे, रिफाइनरी बना रहे हैं, तो अभी मानिए हमें रिफाइनरी के ऑर्डर देना है रिफाइनरी के लिए, तो हमने जिसको जो पार्टी को दिया, चाहे इसको पावर प्लांट के लिए ऑर्डर दिए हैं, तो हम जिस पार्टी को देते हैं पहले एडवांस देना पड़ता है, वो कंप्लीट कर लेगा, लास्ट में उसको 20% या 10% पेमेंट देके उठा के इंस्टॉलेशन करना है, तो एडवांस तो जाता रहेगा। वो हमारे मार्च तक सारे धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे, ये लोग मटेरियल आना चालू हो जाएगा, साइट पर डिलीवरी होना चालू हो जाएगा, तो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएंगे। गॉट इट। और सर आपने बताया कि ये जब 12 वेल ड्रिल हो जाएगी, इससे 800 से 900 बैरल पर डे का प्रोडक्शन होगा, ये सही है या कुछ अलग है? सर आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी भी हम 15-16 हजार बैरल तो पर मंथ कर ही रहे हैं, समझ गए? 16 हजार बैरल आज के टिल डेट में प्रोडक्शन है, लेकिन उसमें क्या है 585 बैरल तो हमें ओएनजीसी को पहले से जो हमने लिया उनका वेल उसमें देते हैं हम, जो $5.5 जिसका हमको देते हैं। हमारा जैसे हमारा खुद का अगर जो $500 से $700 बैरल पर डे हो जाए तो 20 से 21 हजार बैरल हो जाएगा, और हम आशा करते हैं कि हो भी जाएगा। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, ये हम कर लेंगे। ओके। सर मैं सर थोड़ा नया हूँ कंपनी के लिए, तो ये समझना था सर, जो 350 करोड़ का हम करेंगे उससे हमारा 5 से 6 हजार पर मंथ का बैरल का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और सर इसमें से हमें कितना बचेगा हम आरबीएम के लिए, और कितना हमें ओएनजीसी को देना पड़ेगा? सर आपको क्लियर बता रहे हैं, अगर जो 20,000 बैरल पर मंथ कर रहे हैं तो 20,000 बैरल अगर करते हैं तो आप हमें जोड़ने की जरूरत नहीं, आप ही जोड़ लो कि 20,000 बैरल में अगर 11,000 बैरल उनको देते हैं, 9,000 बैरल हमारा होता है। 11,000 बैरल क्योंकि उनका एक कमिटमेंट है, उनको 3 साल तक उतना देना है, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन होता है। हमारा 6-7 हजार बैरल का जोड़ लीजिए, 34% वो ले जाते हैं, 66% अपने को मिलता है। तो जो डॉलर का रेट रहेगा आज, जो क्रूड का रेट रहेगा, उसी में हमारा शेयरिंग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एक आज रेट फिक्स हो गया, कल वीकली हमारा मंडे को रेट आ जाता है, डॉलर का भी और क्रूड का भी रेट हो जाता है। कम रहेगा तो वो वीक पूरा कम ही मिलेगा, ज्यादा रहेगा तो पूरा वीक ज्यादा ही मिलेगा। अगर मानिए नेक्स्ट वीक में हमारा डॉलर का रेट हो गया $85 हो गया, और हमने आज मंडे को $89 है, तो $89 के हिसाब से पैसा मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीक में जाके अगर जो मंडे को वही रेट रहेगा तो उसी रेट में बनेगा। गॉट इट। सर बहुत हेल्पफुल थे सर आपके आंसर। सर थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you. The last question for the day comes from Suman, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. So congratulations first for the good set of numbers. सर मेरे को बस एक सिंपल क्वेश्चन था कि आप मतलब लास्ट भारत कनेक्ट में भी या लास्ट कुछ आप कौन से भी, मतलब मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जुड़ा हूँ आपकी कंपनी से। यस सर, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे थे कि मतलब बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे पोर्ट्स में आपने बोला था, और आप कब से मतलब ऑलमोस्ट आप 1 साल के ऊपर से बोल रहे हैं कि सोलार ईपीसी में आएगा कोई ऑर्डर्स, उसमें नहीं आया। और आप कुछ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के बारे में बोल रहे थे, रेलवेज के बारे में बोल रहे थे, और लेकिन ऑर्डर्स तो नहीं आ रहे हैं सर। मतलब लास्ट 7-8 महीने से या लास्ट 1 साल से भी देखोगे, ओएनजीसी के बाद कोई मेजर ऑर्डर कुछ आया नहीं है। एंड इसके बाद मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बोल दिया, मैं समझ गया। पोर्ट के ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, ऑलरेडी रेडी पोर्ट में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी बड़े उनके वर्क्स बनाने, उसके लिए हम डायरेक्ट बिडिंग में है, कई कंपनियां हमारे साथ बिडिंग में भी हैं, तो वो चल रहे हैं, हमारे उनके निगोशिएशन चल रहे हैं। देखिए ये सब काम ऐसा होता है ना,
कि किसी आदमी को तुरंत वो लोग अलॉट भी नहीं करता है, सबका रेट लेता है, फिर उसका टेक्निकल होता है। इसीलिए मैं बड़े अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ा हूँ, पोर्ट वालों को। तो वो अभी आएगा तो इत्मीनान से आएगा, कोई ऐसा नहीं है घबराने का। जब काम हमको लेना है तो और हमें जाना है तो थोड़ा आगे पीछे करके रेट्स में या किसी चीज में आ जाएगा, वो तो पक्का है। बिडिंग भी हो चुका है उसका, अभी वो खुला नहीं है, बिड बॉक्स को उसका खुला नहीं है। सोलर ईपीसी वाली जो बात कर रहे हैं कि देखिए आज की डेट में हम सोलर का बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं, लेकिन सोलर में हम किसी के साथ सब्जेक्ट में या ज्वाइंट वेंचर में घुस रहे हैं तो उनके साथ देखो गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं है ईपीसी में। हर स्टेट का आप जानते हैं कि आज की डेट में रेट बहुत डाउन हो चुका है, यानी आप लागत लगाते हो और उसके बाद भी वो पैसा नहीं मिलता है, तो आप अगर प्रॉफिट भी नहीं रहेगा तो भी हल्ला करोगे कि सर प्रॉफिट तो हुआ नहीं, आज 2 रुपया 3 रुपया 11 पैसा गवर्नमेंट दे रही है। तो सोच समझ के करना है। हमें प्राइवेट अगर जो कोई वायर मिल जाता है, खरीदार मिल जाता है तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं। जैसे हम रायपुर में बात कर रहे हैं कई जगह पे, तो थोड़ा सोच समझ के करना। आदित्य भी आए तो बोले पापा अगर जो आप 3 रुपया 11 पैसा में बेचोगे तो इतना लगा रहे हो, आज की डेट में सोलर करने जाएंगे तो 2.5-3 करोड़ रुपया विदाउट लैंड तो हमारा लग जाता है पर मेगावाट का। वो पैसा कितने दिन में अपने को रिटर्न बैक हुआ। यार मैं जात से ब्राह्मण हूँ लेकिन काम से तो बनिया हो गया ना, तो सोचना तो पड़ेगा। तो वो देख के अभी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और जैसे हमें मौका मिलेगा हम तैयार हैं, 10, 20, 50 मेगावाट डालने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन थोड़ा अपने को सोच समझ के करना है क्योंकि मार्केट बहुत अप डाउन चल रहा है। जी 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 ठीक है सर। ये आप जो रेलवे का बोल रहे हैं, आप ये 15 रेलवे का ऑलरेडी हमारा एक छोटा टेंडर हुआ है, ऑलरेडी हो गया है, अभी LOI नहीं आया है, आ जाएगा। L1 तो हो गया हूँ, ये तो कंफर्मेशन मिल गया अपने को, आएगा तो हम आपको बता देंगे सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू। ओके, Thank you. Now I hand over the floor to management for closing comments. थैंक यू। कंप्लीट हो गया मैम? हेलो, हाँ तो मैं अपना स्पीच दे दूं ना? यस सर। ठीक है, सभी इन्वेस्टर को धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। RVM फैमिली में आपका स्वागत है। आज इस बैठक में शामिल होकर हमारा साथ देने के लिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने अपने व्यस्त टाइम समय देकर जो कीमती समय निकाला उसके लिए हम आपके आभारी हैं। RVM इंफ्राकॉम लिमिटेड H126 ऑर्गेनिक कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारे सभी इन्वेस्टर को धन्यवाद। शेयर होल्डर्स को स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अपने RVM पूरा परिवार बनाए रखा है। इस विश्वास और RVM टीम की सतत मेहनत के बल से हम RVM की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो भी क्लाइंट हमारे हैं, रिलायंस है, न्यारा एनर्जी है, अडानी है, L&T है, ONGC है, IOCL, कल्पतरू, वेदांता, कई दूसरे क्लाइंट्स लंबे समय से रिश्ते उनके साथ संबंध से काम कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स प्राप्त करने के लिए भूमिका निभाता रहा है। मैं एक बार फिर मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आदित्य। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। सबके सपोर्ट के साथ ही RVM आगे ग्रोथ करेगी और आप लोग का जो ट्रस्ट है और आप लोग का जो रेगुलर इस तरह से इंटरेक्शन जो हमारा होता रहता है, वट एवर वी आर इंटरेक्टिंग, आप लोग का जो फीडबैक है, इट गिव्स अस boost us to perform more so that we keep our investors happy, not in terms of answering only, but we already delivering our commitment. तो होप सो आप ऐसे ब्लेसिंग देते रहें कि हम अपने कमिटमेंट को हमेशा पूरा करते रहें एंड obviously we will do better in future ahead. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, this concludes your conference call for today. Thank you for your participation and for using Dur Sabha's conference call service. You may disconnect your lines now. Thank you and have a good day. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay.